It's my proud privilege to introduce Ashfaq Lal Khan sir. First of all, on behalf of Noori Academy, I would like to extend my deepest gratitude towards Ashfaq Lal Khan sir for accepting our humble invitation and sharing his valuable time along with us. Today, he is along with us for sharing valuable information on newly prescribed textbook for 10th standard. Today, he will deliver his lecture over the aspect of textbook, that what kinds of lessons have been prescribed in the newly formed textbook, what are the criteria, on the basis of that students' skill will be evaluated. So first of all, let me introduce him. That I think, as per my information is concerned, he has been teaching in JT Girls High School and Junior College. Right now, he is the president of AMETA, All Malegaon English Teachers Association, and he is one of the best teachers of English in Malegaon. I have seen him teaching in numerous places. He is the best teacher of English, and he has good knowledge and command over English language. He has mastery over English language. Whenever he delivers lecture anywhere, he tries to eradicate the problems of students. Today I expect same thing, that as he has good mastery over English language, so today he will tackle the problems of students. That most of the students, they have lots of problem in complexity regarding the new syllabus of English. They don't know that what kinds of question are going to be asked in the examination, what is the criteria, or what are the basis for the evaluation of students. So today he will tackle all the problems, and I think he will deliver lecture after lecture. So first of all, he will deliver lecture on aspect of English textbook. So I humbly request Ashfaq Lal Khan sir, please initiate your valuable lectures for enriching information of students as well as teachers. Thank you so much for this wonderful introduction. Dear students, as you know that from this year you have new textbook in English language. So before studying this textbook, let us know what is actually new in this new textbook. सबसे पहले तो किसी भी किताब का जो टाइटल होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है. अर्लियर जो हमारे यहाँ पे इंग्लिश की बुक्स थी उसका टाइटल था इंग्लिश रीडर्स, लेकिन इस इंग्लिश टेक्स्ट बुक का टाइटल है माय इंग्लिश कोर्स बुक. अगर इसका नाम सिर्फ ये होता इंग्लिश कोर्स बुक, तो ये टाइटल अपने आप में एक मुकम्मल टाइटल था. लेकिन आप गौर कीजिए कि इसमें लफ्ज़ माय को ऐड करके ये इफ़ेक्ट देने की कोशिश की गई है कि ये आपकी किताब है. माय इंग्लिश टेक्स्ट बुक, दैट मीन्स इट इज़ योर बुक एंड यू हैव टू स्टडी इट. आमतौर से हमारे यहाँ पर दरसी किताब के ताल्लुक़ से ये जहन बना हुआ है कि दरसी किताब वो किताब होती है जो टीचर की निगरानी में पढ़ी जाती है. टीचर कहेंगे ये किताब निकालिए और टीचर सबक पढ़ेंगे, वो समझाएंगे तो बच्चे समझेंगे. ये मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स के जहनों में था, इसको हटाने के लिए इसमें माय का वर्ड जो है वो ऐड किया गया, माय इंग्लिश कोर्स बुक. इसलिए इस बुनियादी बात ये है कि ये किताब आपकी किताब है, आपको पढ़ना है और आपको एक्टिव पार्ट अदा करना है इस किताब की टीचिंग और लर्निंग में. ये है किताब का टाइटल. दूसरी बात, ये पहली दरसी किताब है जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स को एड्रेस की गई है. इसका प्रीफेस डायरेक्ट स्टूडेंट को एड्रेस करता है. इससे पहले जो किताबें थी उसके प्रीफेस में स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं किया जाता था, वो जनरल लिखा जाता था, जिसमें स्टूडेंट्स भी होते थे, टीचर्स भी होते थे, पेरेंट्स भी होते थे. लेकिन इस टेक्स्ट बुक के प्रीफेस में डायरेक्ट एड्रेस स्टूडेंट्स को किया गया है और ये बात कही गई है कि ये आपकी किताब है, आपको इसे पढ़ना है और इस किताब को चाइल्ड सेंटर्ड
और स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है। और इस किताब को पढ़ाते वक्त हमें ये महसूस हुआ कि वाकई में ये किताब चाइल्ड सेंटर्ड है। ये दूसरी चीज़ इस किताब के बारे में है। इस किताब को पढ़कर आपको इंग्लिश ज़बान के ताल्लुक़ से 3 चीज़ें आपको सीखनी हैं। ये 3 लर्निंग के एस्पेक्ट्स है जो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको हासिल करने हैं। पहला इसमें एस्पेक्ट है लर्निंग द लैंग्वेज। दैट मीन्स थ्रू दिस टेक्स्ट बुक यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और लर्निंग द लैंग्वेज से मुराद ये है कि जो ज़बान की जो बुनियादी महारतें हैं, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, ये 4 स्किल आपकी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होनी चाहिए। तो इस किताब का एक मकसद ये है कि वो आपकी ये चारों ज़बानदानी की बुनियादी महारतों को आपकी मजबूत करे। पहला इसका मकसद है। दूसरा ये किताब का मकसद है लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको मालूमात हो। इस ज़िम्न में इंग्लिश का ग्रामर है, इंग्लिश की वोकेबलरी है, इंग्लिश का लिटरेचर है, ये चीज़ें इस ज़िम्न में आई है और इसके मुताबिक किताब में असबाक दिए गए, एक्टिविटीज़ दी गई है। और तीसरा मकसद जो इस किताब से हासिल करना है वो ये है कि लर्निंग थ्रू द लैंग्वेज, यानी आपको अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए से दूसरे मज़ामीन और दूसरी मालूमात हासिल करना है। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एवरी 7% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर हायर स्टडीज़। इसलिए आपको लर्निंग थ्रू द लैंग्वेज, इस मकसद के ज़रिए से आपको इस काबिल बनाया जा रहा है कि आप अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए से दूसरे मज़ामीन हासिल कर सके, दूसरे मालूमात आप हासिल कर सकें। तो ये 3 इसके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग द लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज और लर्निंग थ्रू द लैंग्वेज। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ये किताब को डिज़ाइन किया गया है। इसलिए इस किताब की डिज़ाइन में, असबाक में, इसकी एक्टिविटीज़ में इस बात का ख्याल रखा गया है कि इसकी हर एक्टिविटी कहीं न कहीं ये तीनों मकासद को हासिल करने वाली हैं। इस किताब में कुल 4 यूनिट्स हैं और 22 असबाक है, जिसमें पोइट्री और प्रोज दोनों शामिल हैं। और हर सबक के शुरुआत में एक वार्मिंग अप एक्टिविटी दी गई है। ये हर सबक के शुरुआत में वार्मिंग अप एक्टिविटी। वार्मिंग अप एक्टिविटी में आपको 2 एक्टिविटीज़ दी गई है। इसमें पहली एक्टिविटी है चिट चैट एक्टिविटी। इस चिट चैट एक्टिविटी में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। कहीं पर आपको पेयर वर्क करना है, कहीं पर आपको ग्रुप वर्क करना है, ताकि ये जो पेयर और ग्रुप वर्क होगा, जो क्वेश्चन आंसर होगा, इसके ज़रिए से आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी चिट चैट के ज़रिए से। और चिट चैट एक्टिविटीज़ इस लिहाज से भी अहम है कि इम्तिहान में जो डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन आपको आएगा उसके सवालात चिट चैट से लिए जाएंगे। उसके बाद वार्मिंग अप में जो सेकेंड एक्टिविटी है वो वोकेबलरी और वोकेबलरी बेस्ड है और ग्रामर बेस्ड है। और इसमें बहुत ही इंजॉयबल एक्टिविटीज़ दी गई है। जब आप वो एक्टिविटीज़ हल करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे और आप ज़बान भी सीखेंगे। ये वार्मिंग अप सेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एज फार एज लैंग्वेज लर्निंग इज़ कंसर्न एंड एज फार एज एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न। उसके बाद सबक शुरू होता है। सबक लिखा हुआ है, लेकिन सबक के साथ साथ एक मार्जिन स्पेस भी इस बार इस किताब में फराहम की गई, जो इससे पहले की किताब में ये कॉन्सेप्ट नहीं था।
मार्जिन स्पेस में न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए हैं, जो नई टर्म्स आई है उसके मीनिंग्स दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। और टीचर्स को भी ये कहा गया है कि वो पढ़ाते वक्त वो सवालात बच्चों से पूछे, ताकि ये पता चले कि जो टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है स्टूडेंट उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मार्जिन स्पेस भी बहुत अहम है और आपने पढ़ाई के दौरान इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया होगा। उसके बाद सबक ख़त्म होने के बाद जो एक्टिविटी दी गई उसका नाम है इंग्लिश वर्कशॉप। इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो पूरे टेक्स्ट की बुनियाद पर तैयार की गई है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अहम है, इसलिए कि इम्तिहान में अक्सर सवालात आपको इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में से ही आएंगे। इस इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी में जो एक्टिविटीज़ दी गई है ये एक्टिविटीज़ 3 दर्जों की है। शुरुआत की एक्टिविटीज़ बहुत इजी है, उनका लेवल बहुत आसान है। उसके बाद मीडियम लेवल की एक्टिविटीज़ दी गई है और उसके बाद चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ भी दी गई है। और इसी तर्ज पे आपका क्वेश्चन पेपर भी रहेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में भी 40 मार्क्स के एक्टिविटीज़ जो होगी वो इजी लेवल की होगी, 40 मार्क्स की एक्टिविटी मीडियम लेवल की होगी और 40 मार्क्स की एक्टिविटी चैलेंजिंग होगी, 20 मार्क्स की चैलेंजिंग होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ के बाद लैंग्वेज स्टडी करके एक सेक्शन दिया गया है। इस लैंग्वेज स्टडी सेक्शन में आपको इंग्लिश ग्रामर के सवालात दिए गए हैं जो ज़रूरी है आपको पढ़ना, और जो टेक्स्ट में जो आए हैं उससे रिलेटेड ग्रामर उस टेक्स्ट के बाद में दिया गया है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी आपको इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी ये अहम है और ज़बानदानी सीखने के लिहाज से भी ये बहुत ही अहम है। इस तरीके से हर लेसन इस तरतीब पे डिज़ाइन किया गया है। पहले वार्मिंग अप है, फिर टेक्स्ट है, फिर इंग्लिश वर्कशॉप है और उसके बाद लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन है। इस तरीके से आपको हर लेसन को पढ़ना है। एक नई चीज़ इसमें जो इंट्रोड्यूस की गई है वो लाइव इंग्लिश के नाम से दी गई है। यूनिट के ख़त्म होने के बाद एक लाइव इंग्लिश एक्टिविटी दी गई है। इसका मतलब ये है कि आप जो अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहे हैं आप उसको आउटसाइड वर्ल्ड में कैसे उसको यूज़ करें, इसलिए फॉर्म फिलिंग की एक्टिविटीज़ दी गई है या टूरिस्ट लीफलेट दिया गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए गए हैं। और ये एक्टिविटीज़ भी आपको आउटसाइड वर्ल्ड से भी रिलेट करती है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन नंबर 7A में इस एक्टिविटी पर सवाल पूछा जाएगा। इसलिए आप जब इस किताब को पढ़ें तो आप 2 चीज़ों को जहन में रखें। जो भी एक्टिविटी आप हल करें तो पहले ये देखें कि ये एक्टिविटी ज़बानदानी के किस मकसद को पूरा करती है। आया मैं इससे लर्निंग द लैंग्वेज कर रहा हूँ, लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज कर रहा हूँ या लर्निंग थ्रू द लैंग्वेज के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। और दूसरा आप ये देखें कि ये एक्टिविटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस सवाल में ये इस तरीके की एक्टिविटी आएगी। अगर आप इस तरीके से इस किताब को पढ़ेंगे तो आपकी ज़बानदानी की सलाहियत भी बढ़ेगी, उसमें तरक्की होगी और साथ साथ आप इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी तैयार होते जाएंगे। और जब आप क्वेश्चन पेपर, और जो क्वेश्चन पेपर की बजाय उसको अब एक्टिविटी शीट कहा जाता है, एक्टिविटी शीट जब आपके हाथ में आएगी तो वो आपको बिल्कुल नई नहीं लगेगी, बल्कि आपको लगेगा कि ये वही चीज़ है जो मैं क्लास में रोज़ाना किया करता था। इसलिए उसका नाम अब एक्टिविटी शीट है और वो आपकी रोज़मर्रा की क्लासरूम एक्टिविटी से बहुत मुशाबहत रखती हुई होगी। इसलिए एक कोशिश इसमें ये भी की गई है कि जो गैप था, द गैप बिटवीन टीचिंग एंड टेस्टिंग हैज़ बीन ब्रिज्ड, तो ये गैप भी ब्रिज करने की कोशिश की गई है। और इस तरीके से अगर आप इस किताब का मुताला करेंगे तो ज़बानदानी की सलाहियत भी आप में पैदा होगी और इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी ये बहुत अहमियत की हामिल होगी। मुझे उम्मीद है कि आप
बताई गई बातों पर अमल करके इस किताब का मुताला करेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़बानदानी के लिए भी और इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी आपको तैयार करे और आप इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब हो। थैंक यू सो मच।